ओके, तो लास्ट टाइम हम सीख रहे थे हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। ओके, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ वी विल सी कि अगर मैक्सिमम मिनिमा किसी रिस्ट्रिक्टेड रीजन पे हो इवेल्युएट करना, then how can we do that? Okay, it means if function, the domain of the function is restricted, then how can we evaluate the maximum minima? In that case we call the maximum minima as a absolute maxima or minima. Okay, so uh, we will write it absolute maxima and minima on closed bounded regions. ओके, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? टू सेव आवर टाइम आई विल टेक एन एग्जांपल, उस एग्जांपल को हम सॉल्व भी करेंगे एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ we need to determine the maximum minimum on closed and bounded region, then how can we do that? Okay, so theory and practice both will I'll do it together so that we can save some time. So we have been given this function fxy equals to fxy equals to 2 plus 2x plus 4y minus x square minus y square. So this is a two variable function. We have to find absolute maxima and minima on the triangular region triangle. What is that triangular region? Means the maximum minimum of this fxy on this region. We have the equation of this line. This line is y equals to 9 minus x. Okay, so naturally this point is 9 comma 0, this point is 0 comma 9, this is origin 0 comma 0. Okay, so this triangular region, इस पे हमको इवेलुएट करना है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल लिस्ट फ्यू देम। फर्स्ट वील ट्राई टू चेक द इंटीरियर पॉइंट्स, मतलब हम पहले ये फिगर आउट करेंगे कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा इसके इंटरनल पार्ट पे एग्जिस्ट कर रहा है या इट इज एग्जिस्टिंग ऑन द बाउंड्री। ओके, सो इंटीरियर पॉइंट्स, तो इंटीरियर पॉइंट्स के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज द partial derivative idea. Take the partial derivative and equate it to 0. Interior points so for interior points we can get those points by solving these two equations, fx equals to 0
and fy equals to 0. So this will give us 2 minus 2x equals to 0. 2 minus 2x equals to 0 and 4 minus 2y equals to 0. Okay, so if we solve both of them, so what we'll get x comma y equals to minus 2 comma, sorry, 1 comma 2. All right, 1 comma 2. So what we'll do, we will simply evaluate. So this is one of the critical point. So simply what we'll do, we'll evaluate f of 1 2 and note its value. So if you evaluate f of 1 2 using this function, so it will come out 7. So we will not go directly after this point to check whether the double derivative condition is satisfied or not. We'll only evaluate the critical point using this fx equals to 0, fy equals to 0, and then evaluate the function's value at that critical point and keep it in our record. Okay. So what it says if the maxima or minima is existing inside the triangular region, then that would be the point which is 1 comma 2 in this particular case. Okay. Now what we'll do, we'll check on the boundaries as well, whether there is a possibility that the maxima or minima is existing on boundary or not. So we will check the boundary points. So we have three boundary points. Boundary points. Okay, so basically in boundary points, these corner points 0, 9, 9, 0 and 0, 0. They are the boundary points along with every point on the perimeter of this triangle that actually comes on the boundary points. So what we'll do, we will simply evaluate maxima or minima along every line. Okay, what are the lines? This line is y equals to 0, this line is x equals to 0, and this line is y minus 9x. So at every segment of line, we will evaluate the maxima or minima. So first we'll go with the along x equals to 0. Along x equals to 0. So for x equals to 0, simply substitute x equals to 0 in the given function. So you'll get f of 0 comma y. So it means it will become a single variable function. It will be 2 plus 4y minus y square. Okay, so which is nothing but a function of y. Okay, so we can evaluate its maximum by using our existing idea. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h प्राइम y को हम 0 कर देते हैं. h प्राइम y को आप 0 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, you will get 4 minus 2y equals to 0. This implies y equals to 2. Okay, and then h double prime y, this is h double prime y की हमें जरूरत नहीं है. Y equals to 2. So if y equals to 2, so it means what point we got? We got 0, 2. Okay, so simply evaluate f of 0, 2 and note its value. F of 0, 2 is coming out to be 6. So इसको हमने नोट कर लिया, f of 0, 2 को भी नोट कर लिया, which is 6. Now we'll go for along y equals to 0. Along y equals to 0. So along y equals to 0. So f of x comma 0. So it will be 2 plus 2x minus x square. Okay,
So it is again a function of x only, so we can write it like as h of x. And to evaluate its maxima, let's evaluate the critical points by equating its derivative equal to 0. So its derivative h prime x will be how much? 2 minus 2x, and equate it to 0. What we'll get? We'll get x equals to 1. Okay, x equals to 1. So what point we got here? We got 1 comma 0. So evaluate f of 1 comma 0. So f of 1 comma 0, when you will evaluate, it will come out to be 3. Okay, so note this one as well. Now along y equals to 9 minus x. So f of x comma 9 minus x. So it will be 2 plus 2x plus 4 times 9 minus x minus x square minus 9 minus x square whole square. So again it is some function of x only. So equate g prime x equals to 0. So when you do g prime x equals to 0, you will get 16 minus 4x. This implies 16 minus 4x equals to 0. This implies x equals to 4. Okay. So when x equals to 4, then we know y equals to 9 minus x. This implies 9 minus 4, which is 5. So what point we got? We got the point 4 comma 5. Okay. And f of 4 comma 5, this is equal to, if you evaluate, तो ये कितना आ जाएगा? It will come out to be minus 11. So note this one as well. This is 4, not 3. So now what you need to do, simply observe which point is the minimal point and which point is the maximum point. That would be the maxima and minimum. Okay, so naturally 4 comma 5 is the least point. So minima is equal to minus 11 at point 4 comma 5. And what is the maximum value? Minus 11, 3. And then we have 6 and 7. So 1 comma 2 is the maximum point. Maxima is a 7, which is at point 1 comma 2. So in this way we can evaluate wait, we need to check on the corners as well. Okay, so we'll not stop here. Yeah, this is incomplete. We'll not decide at this point. Let's see the triangle. So triangle में क्या आपके corner points क्या हैं? 0 0 9 0 0 comma 9. So evaluate f of 0 0. F of 0 0. F of 0 0 is 2. Evaluate f of 0 comma 9. This will come out minus 43. And evaluate f of 0 comma 2. 0 comma 2, I think we have already done. And f of 9 comma 0.
9,0 will come out to be -61. So basically तो यहाँ से ये पॉइंट जो होगा that will be the minimum point, और जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी that will be the maximum point. तो basically what you need to do, first on the interiors, first evaluate on the interiors, then on boundary, then on corner point. List them all. अब इसमें से what whosoever is the minimum that would be the minimum, whosoever is the maximum that would be the maximum. यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट की जरूरत नहीं है. So that was an example which explains critically that how we can evaluate the absolute maxima and minima in the case when the region is closed and bounded. So that was one thing. Now we will try to learn constraint maxima and minima, where we need to figure out the maximum of some function subject to some given condition. So for that we are going to learn a very strong and good method that is called Lagrange multiplier method, which will help us to figure out the maxima and minima for functions when there are some constraints. Okay. So Lagrange multiplier method. The method of Lagrange multipliers. Multiplier method. Okay, before I start, let me introduce you an operator which is called gradient. Okay. Gradient. So we represent it by a symbol del, and this del is nothing but I del x plus j del y plus k del z. All right. So if suppose I need to evaluate del f, where f is a function of x, y, and z, so it will be nothing but I times del f by del x plus j times del f by del y plus k times del f by del z. Okay. So इसको हम use करेंगे. So let us define how can we define this Lagrange multiplier method. Let fx, y, z, let f of x comma y z and g of x y z, two functions of three variables x y z and g x y z, are differentiable and gradient of g, which I have just defined, is not equal to 0 when g of x, y, comma z equals to 0. Okay, this gradient jet has some numerical, some geometrical meaning as well, but that we'll see later on when we learn vector calculus in detail. But for the time being, we are just taking it as
as an operator. Then to find the maximum and minimum values, maximum and minimum values of f subject to, f means f of xyz, subject to the constraint g of xyz equal to 0, then what we need to do? We need to solve the following expression. Gradient of f equals to lambda times gradient of g along with g of x comma y comma z equals to 0. Okay. So if it is a function of two variables, the same thing will be reduced to function of two variables. So basically what we need to do, whenever we have been given to find the maxima or minima of any given function, subject to means with a given condition that find its maxima and minima with the condition g of xyz equals to 0, then we need to solve these two expressions simultaneously. The solution which will come out of these two expressions, this will lead us to the maxima or minima of the function. ठीक है, एक एग्जांपल हम करते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाएगा. Basically I took lot of time to explain it geometrically how things are moving, but this time we don't have much time to go ahead, so that's why I'm skipping a few things and directly explaining how you can do it, how it is working. That part I'm actually skipping. So let me take an example. Find the greatest and smallest value, or simply find the maxima and minima of f of xy equals to x into y subject to x square upon 8 plus y square upon 2 equals to 1. So we can solve this exercise in two ways. One of them is you can substitute the value of x from this ellipse into fxy, then it will become a function of single variable and you can find the maximum minimum. But we are going to avoid that particular way, and we will use this Lagrange multiplier method to see the solution of this one. So basically, this whole problem turns out to be we are looking for the maximum of fxy equals to xy subject to g of xy, which is x square by 8 plus y square by 2 minus 1 equal to 0. ठीक है. So what I told you to solve the Lagrange multiplier method,
we need to solve this. Gradient of f equals to lambda times gradient of g. All right, and g of xy equals to 0. We need to solve these two simultaneously. Okay, so gradient of f equals to lambda times gradient of g. What it will give? It will give I times del x plus j times del y, and then put the value of f, which is xy equals to lambda times I times del x plus j times del y. I'm not writing k cap times del z because z is not involved in either of the functions, into x square by 8 plus y square by 2 minus 1. Okay, so what you will get on the left hand side, you will get yi plus xj equals to lambda times x by 4 plus into j, not j, I lambda times x by 4 and j lambda times y. Okay, so if we compare the components of I and j on both the equations, so what we'll get? We'll get y equals to lambda x by 4 and x equals to lambda y. So these two corresponds to this equation, del f equals to lambda delta z. And the last one, gxy equals to 0, means x square by 8 plus y square by 2 equals to 1. Okay, so what we need to do, we need to solve these three equations to get the values of x, y, and z. Okay. Sorry. So let's see how we can solve these three equations to get the values of. So let me note it again on the new page. We have got this expression y equals to lambda by 4x and x equals to lambda y. Okay, so we can substitute this equation into this. So what we'll get, x equals to lambda by 4 into lambda y. Sorry, not x equals to, y equals to. Y equals to lambda by 4 into the value of x, which is lambda y. Okay, so from here, what we will get? We will get y equals to lambda square by 4 into y. Okay, so from here, what we'll get? We'll get y into 1 minus lambda square by 4 equals to 0. So this implies y equals to 0 or lambda equals to plus minus 2. Okay, so let us consider some cases so that we can know what are the possible values of x and y. Okay, so let's take case first. If y equals to 0, means suppose we are choosing the first one. If y equals to 0, so this implies x equals to 0. But this y equals to 0 and x equals to 0
it do not satisfies x square by 8 plus y square by 2 equals to 1. This thing do not satisfy this particular expression. So it means this implies y cannot be equal to 0. Okay, y cannot be equal to 0, or the other one, lambda equals to plus minus 2. Okay, y is not 0. So let's go for case 2. Y not equal to 0. Okay, y not equal to 0, then from this expression lambda must be equals to plus minus 2. Then if lambda equals to plus minus 2, then we can use this value of lambda here. So this implies x equals to plus minus 2y. Okay, x equals to plus minus 2y. So we already know this relation, x square by 8 plus y square by 2 equals to 1. We can substitute the value of x here to get the value of y. So what we'll get plus minus 2y whole square upon 8 plus y square upon 2 equals to 1. So ultimately this will be 4y square upon 8 plus y square by 2 equals to 1. So if we solve it, then we'll get y equals to plus minus 1. Y equals to plus minus 1. So if y equals to plus minus 1, then x equals to plus minus 2. This implies x equals to plus minus 2. So these are the points. And what are these points? Plus minus 2, comma 1 and plus minus 2, comma minus 1. These are the points where extreme values will take place, and we can evaluate f of xy at these points, and this is going to be either 2 or minus 2. So maximum value will be 2 and minimum value will be 2. So basically what we did, we simply use this Lagrange multiplier equation along with this given condition, and we solved it, and whatever solution we are getting, that will lead us to the maximum and minimum value. Okay, बताइए क्या डाउट है इसमें? आदित्य सर लास्ट स्लाइड में आपने जो केसेस लिए हैं वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर दे। हाँ ठीक है, देखो यहां से हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट. When we solve this gradient of f equals to lambda times gradient of g, तो हमें दो इक्वेशन मिले, y equals to lambda x by 4 and x equals to lambda y, और ये जो थर्ड इक्वेशन है ये तो हमें प्रॉब्लम में ही गिवन है. ठीक है, तो अब इन दोनों को हम यूज करते हैं. तो y equals to lambda by 4 x में हम x की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो y equals to lambda by 4x, x equals to lambda y, so y equals to lambda by 4 into lambda y. So इससे हमें मिल गया y equals to lambda square by 4 into y, which is ultimately turned out to be y into 1 minus lambda square by 4 equal to 0. So अब इसका solution क्या होगा? Either y is 0 or lambda is plus minus 2. Okay, तो पहला केस हम पिक करते हैं. If y equals to 0, अगर y 0 है तो we can simply use these relations and we'll get x equals to 0. अब y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 है, तो वो जो हमारी गिवन कंडीशन है कि यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम इन मस्ट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, मींस जो भी सॉल्यूशन हो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. तो ये x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करते. ठीक है, अगर आप 0 0 पुट करते हो तो इट इज नॉट लाइंग ऑन दिस पर्टिकुलर इलिप्स. इट मींस जो पहला केस था कि y इक्वल्स टू 0 इट इज नॉट पॉसिबल. अगर y नॉट इक्वल टू 0 है, then lambda must be equals to plus minus 2. फिर हमने उसके लिए इस केस के लिए x और y की वैल्यूज निकाल ली. ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर. वैभव
सर ये एक बार डेफिनेशन समझा सकते हो फिर से लैग्रेंज मल्टीप्लायर की? What Lagrange multiplier method says? It says that key if you need to find a maximum or minimum of any given function subject to a given condition, तो हमें करना क्या होगा, ये जो इक्वेशन है gradient of f equals to lambda times gradient of g, that is called the Lagrange multiplier equation, और जो सेकंड इक्वेशन है वो ऑलरेडी गिवन कंडीशन है, इन दोनों को सॉल्व करके जो x y z की वैल्यूज आएंगी दैट वुड बी द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, इतना ही मेथड है। ठीक है? और सर ये g ऑफ x y z कंस्ट्रेंट इक्वेशन होती है सर हर बार? हाँ, हर बार कांस्टेंट इक्वेशन। ठीक है। तनीश, सर जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारा 1,2 पॉइंट जो था वो अपना उस ट्राइंगल के अंदर आ गया था, इसलिए हमें इंटीरियर पॉइंट में मिनिमम मैक्सिमम मिल गया। अगर हम कोई ऐसी लाइन मिली हुई होती हमें जो 1,2 से जो जिसके कारण 1,2 बाहर चला जाता ट्राइंगल के, फिर तो इंटीरियर पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करने की जरूरत ही नहीं थी ना। हाँ नहीं, अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करते हैं और जो पॉइंट आता है वो आपके जो डोमेन है उससे बाहर चला जाता है, तो वी इमीडिएटली नीड टू डिस्कार्ड इट, हमें उस पर डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। सर फिर तो मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा इंटीरियर पॉइंट्स में या डिक्रीजिंग होगा, फिर तो कंक्लूड कर ही सकते हैं ये चीज। नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप टू वेरिएबल केस में इट वोंट बी दैट इजी। ठीक है सर और एक फंक्शन है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये डिफरेंशिएबल होगा? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई किस पॉइंट पे? 0,0। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई नहीं। सर शार्प कर्व के कारण। यस यस, इट विल नॉट हैव अ यूनिक टेंजेंट प्लेन। सर इसके पर अगर हम वो इसके पार्शियल डेरिवेटिव प्रोबेबली एग्जिस्ट करें, बट आई डोंट थिंक ये डिफरेंशिएबल होगा। नहीं सर, पार्शियल डेरिवेटिव तो मतलब +-1 आ रहे हैं। हाँ, +-1 आ रहे हैं, बट वही fx मैं कह रहा हूँ fx भी सर पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करेंगे, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आपको जो डेल जेड माइनस डी जेड अपॉन डेल रो है उसमें एक बार चेक करके देखो, मुझे नहीं लगता जीरो आएगा। सर नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ना इसके मतलब fx ही दो वैल्यूज ले रहा है ओरिजिन पे, fx +1 भी हो रहा है और fx -1 भी हो रहा है, तो एग्जिस्ट कहेंगे हम कि एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं नहीं, अगर fx की दो वैल्यूज आ रही हैं तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सर फिर पर तो fx उसमें की लिमिट ही नहीं आ रही, फिर ये पार्शियल डेल जेड वाले डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डेल जेड वाले तरीके से शायद डिफरेंशिएबल आ रहा है। किस तरीके से? अरे उसमें भी तो आपके पार्शियल डेरिवेटिव ही यूज होंगे ना, जब आपके पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं मिल रहे हैं तो कैसे डिफरेंशिएबल होगा? तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते फंक्शन को 4 फंक्शंस में, x + y, x - y, -x + y और -x - y। आप स्प्लिट कर सकते हो, बट जब आप 0 0 पे इवैल्यूएट करोगे तो यूज तो इसी की डेफिनेशन करोगे ना। ओके सर। ठीक है, हिमांशु। हो गया सर, डाउट क्लियर हो गया सर, वही ओके पूछना ओके, है। ठीक है ठीक है। सुमित सर बताइए। सर इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगुलर रीजन गिवन है? हाँ, यस, ट्रायंगुलर रीजन इज गिवन, पहला क्वेश्चन जो किया हमने ना। यस सर, अगर कोई फंक्शन 0 है उसका ग्रेडियंट 0 होगा या नहीं होगा? फंक्शन 0 है तो उसका ग्रेडियंट तो 0 ही होगा। तो फिर सर आपने लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि 0 नहीं पॉसिबल है। नहीं, कोई फंक्शन ही 0 है तो उसका ग्रेडियंट 0 होगा ना, ये तो इक्वेशन है। ठीक है, सर जैसे जीओ फंक्शन गिवन है उसका सर वो निकालना सर लैमिनर वाला। नहीं, ग्रेडियंट का मतलब ये हुआ कि हम उस इक्वेशन में दोनों तरफ ग्रेडियंट नहीं अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ये मैंने लिखा है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये लिखा है ना, यही आप कह रहे हो ना कि
आर डिफरेंशिएबल एंड ग्रेडियंट ऑफ जी इज नॉन जीरो व्हेन जी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये है कि मींस ये हम नहीं इवेल्युएट कर रहे हैं कि g ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू जीरो, ऑपरेट बोथ साइड ग्रेडियंट ऑफ g, फिर तो ग्रेडियंट ऑफ g जीरो ही होगा। जो g ऑफ एक्स वाई Yes, जेड sir. एज अ फंक्शन है, अगर सपोज g ऑफ एक्स वाई जेड आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं वैल्यूएट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो है, दोनों तरफ डेल्टा ऑपरेट किया तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। सिर्फ Okay. जब डेल जी नॉट इक्वल टू जीरो हम कह रहे हैं तो हम सिर्फ जो फंक्शन वाला पोर्शन है सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है sir. रवि रंजन, यस सर। सर जो इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जांपल दिए थे, उसमें बाउंड्री पॉइंट निकालने के लिए बताए थे, उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखें तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 के अलावा ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखने का कोई मतलब नहीं है, ज्योमेट्रिकली हम देख भी नहीं पाएंगे अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है तो। इट्स ओनली इंश्योरिंग कि अगर आपका रीजन क्लोज्ड एंड बाउंडेड है तो नॉट ओनली क्रिटिकल पॉइंट्स, यू नीड टू चेक ऑन द बाउंड्री एज वेल एज कॉर्नर पॉइंट्स एज वेल। जैसे आप सिंगल वेरिएबल के लिए करते थे, अगर आपका एक इंटरवल पे डिफाइन है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है सिंगल डेरिवेटिव जीरो, उस पे तो आप चेक ही करते थे, उसके अलावा बाउंड्री पे भी चेक करते थे, ठीक है। यस तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। जैसे मैं एक फंक्शन अगर ड्रॉ करूं, जैसे मान लो ये फंक्शन है, एक्स वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये इस तरीके का फंक्शन है, मान लो इसको और नीचे कर दो, ठीक है। और हम बोल रहे हैं कि हमें इसी इंटरवल पे इसका मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, तो इसको बीच में थोड़ा सा उठा दो। ये सिंगल वेरिएबल का एग्जांपल है, ठीक है। तो एब्सोलूट का मतलब ये कि जो सबसे कम हो या सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम मिनिमा केस में। तो अब अगर इसमें आप डेरिवेटिव टेस्ट लगाओगे, तो डेरिवेटिव टेस्ट आप लगाओगे तो दो जगह आपका जीरो होगा। अगर फॉर एग्जांपल हम मिनिमा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो आप मिनिमा वाला क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो तो ये आएगा, ठीक है। यस बट इसका एक्चुअली में मिनिमा कहाँ है? एक्चुअली में मिनिमा तो यहाँ है, कॉर्नर सबसे नीचे है। कॉर्नर पॉइंट। बट ये आपको डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं मिलेगा, ये आपको सिंपली एंड पॉइंट पे फंक्शन को इवैल्यूएट करके पता चलेगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सार्थक, सर जैसे कि सर हम जब बाउंड्री पॉइंट्स पे जब निकाल रहे थे मैक्सिमम मिनिमा, तो उसमें सर कॉर्नर पॉइंट में तो इंक्लूडेड नहीं होंगे उसमें? कॉर्नर पॉइंट इंक्लूड, नहीं होगा। वही जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वही केस है। जैसे तो सर आप ऐसा क्यों हो ध्यान क्यों दो, रहा है ऐसा समझो, कि मतलब आपका क्वेश्चन अच्छा है, योर क्वेश्चन इज गुड, बट आप केयरफुली समझो, देन यू विल गेट इट, ठीक है। जब हम बाउंड्रीज के अलोंग निकाल रहे हैं, मतलब बाउंड्रीज के अलोंग निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पूरे इक्वेशन में सपोज हम वाई एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं, तो आपका यही क्वेश्चन है ना कि 0,9 पे फिर अलग से निकालने की क्या जरूरत है। हमने इस बाउंड्री में तो 0,9 भी इंक्लूड हो गया, ठीक है। बट जब हमने x इक्वल्स टू 0 इसमें पुट किया, ठीक है, तो हमारा ये फंक्शन टू वेरिएबल से सिंगल वेरिएबल हो गया। तो अब इसका जो मैक्सिमा या मिनिमा हम निकाल रहे हैं वो क्रिटिकल पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, ओके। क्योंकि हमने फिर क्या किया, इसको h प्राइम y इक्वल्स टू 0 किया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये वो वाला पॉइंट देगा जहां पे उसका स्लोप जो है x एक्सिस के पैरेलल है, जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव का आइडिया है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि वो आपका लास्ट वाला पॉइंट भी दे। अगेन मैं उसी टाइप का फंक्शन अगर बनाऊं, सपोज जो
जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो जो फंक्शन आया सपोज उसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ ऐसी है, ये इस टाइप की है, ये ऐसे जैसा फंक्शन भी मैंने बनाया था। तो सर जैसे कि जो ये मैक्सिमम मिनिमम है वो वाले पॉइंट्स देगा, और जो एंड पॉइंट है उस पे मतलब जब स्लोप 0 ही नहीं होगी तो वो देगा ही नहीं उसमें। एग्जैक्टली जरूरी थोड़ी कि एंड पॉइंट भी स्लोप 0 हो। अब जैसे ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट मेरा 0,9 है, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ओके, ये पॉइंट अगर मेरा 0,9 है, बट ये डेरिवेटिव से कभी नहीं मिलेगा हमको। डेरिवेटिव से जो हमें मिलेगा वो तो ये मिलेगा, ये मिलेगा या ये मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए अलग से 0,9 पे हमें देखने की पूरी जरूरत है, ठीक है। और सर जो आखिरी में से 2 केसेस है वो समझा दो दोबारा लैग्रेंजेस में। ओके अभी तो मैंने बताया, चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, ये जो दोनों ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं इनको हमें सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें 2 इक्वेशन मिले, y इक्वल्स टू लैम्डा x बाई 4, x इक्वल्स टू लैम्डा y। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 इंटू लैम्डा y। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो वी गॉट y इंटू 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0। तो यहां से पता चला कि y या तो 0 होगा या तो प्लस माइनस 2 होगा, ठीक है। अब हम केस 1 केस 2 ले रहे हैं कि जब चेक कर रहे हैं कि y इक्वल्स टू 0 होगा या लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 होगा। तो पहला केस वी पिक्ड y इक्वल्स टू 0, सो इफ y इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0। बट ये जो पॉइंट निकल के आएगा हमारा 0,0, ये जो गिवन कंडीशन है इट इज नॉट सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन। गिवन कंडीशन तो आपका एक इलिप्स है, तो 0,0 तो इलिप्स पे लाई ही नहीं करेगा, इट इज नॉट ऑन द पेरीमीटर ऑफ द इलिप्स। तो सर पर y और लैम्डा दोनों साइमल्टेनियसली कंडीशन मेट हो सकती है ना, y इज इक्वल टू 0 भी है और लैम्डा प्लस माइनस 2 भी है। साइमल्टेनियसली होगा तो भी y वाला 0 नहीं होगा ना। साइमल्टेनियसली भी अगर आप लेते हो तो अगर मींस यू आर टेकिंग बोथ y इक्वल्स टू 0 एज वेल एज लैम्डा इक्वल्स टू प्लस माइनस 0 आ जाएगा उसमें, ठीक है। उस केस में भी आपका x 0 हो जाएगा, वो फिर अगेन दैट पॉइंट इज आउट ऑफ आवर डोमेन, ठीक है। और सर जो ये जो लैग्रेंजेस का वो है उसमें मतलब ये कहना है कि जहाँ पे g x y z 0 होगा उन पॉइंट्स पे f x y की जो मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी ना हमें। हाँ हाँ, एक्चुअली यही मतलब है इसका कि एफ एक्स वाई जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, पिक किया है, एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई, इस फंक्शन का हमें मैक्सिमम मिनिमा चाहिए कहाँ पे, इस इलिप्स के बाउंड्री पे। और सर अगर एफ एक्स वाई और जी एक्स वाई कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे मान लो, तब तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि उनके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना। नहीं, इंटरसेप्ट की बात नहीं है बच्चे, इसमें ये सिर्फ डोमेन डिफाइन करेगा, ये डोमेन के कलेक्शन पॉइंट डिफाइन करता है। अगर मैं एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई का आपको यूजली बोलता कि फाइंड इट्स मैक्सिमम मिनिमा, तो आपका डोमेन क्या होता है, इंटायर एक्स वाई प्लेन। बट उसी एक्स वाई प्लेन को हमने कम करके ये कह दिया कि ऑल दोज पॉइंट्स विच सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो हमें इसका मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए सिर्फ इस इलिप्स के ऊपर, उसमें इस इलिप्स का और सरफेस के इंटरसेक्शन का कोई मतलब ही नहीं। मतलब सर ये कुछ ऐसा हो गया, इलिप्स के पॉइंट सरफेस पे मतलब लाई नहीं कर रहे मतलब तब नहीं आप नहीं तो फिर नहीं एग्जिस्ट करेगा ना, फिर तो आपका ये जो डोमेन है वही एम्प्टी सेट है। हाँ वही 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 कहना चाह रहा था मैं। डोमेन ही एम्प्टी सेट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये सपोज आपकी सरफेस है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेस में हमने एक इलिप्स ले लिया, ठीक है, यहाँ पे एक इलिप्स ले लिया। अब हम ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये सरफेस के इमेजेस हैं हर एक इलिप्स के बाउंड्री पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पूरे कलेक्शन ऑफ फंक्शंस पॉइंट्स इकट्ठा हो रहे हैं उसमें से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है कौन सा मिनिमम है, ये हम फिगर आउट कर रहे हैं, ठीक है। और सर जैसे कि सर हमने वो एक डी डेल्टा जेड माइनस डी जेड वाला जो हमने यूज करा था ना, तो उसमें सर डेरिवेशन हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि हम एक्स नॉट वाई पॉइंट को हमें अप्रोच करना है ए बी से, तो सर हम ये कह सकते हैं कि जिस प्लेन में ए बी और एक्स नॉट वाई नॉट है वो वाली स्लोप आती है हम हमारे एफ डैश एक्स वाई से। एफ डैश एक्स नहीं नहीं ऐसा नहीं। जैसे ये है, मान लो कि
आपका सिंगल डेरिवेटिव में सिंगल फंक्शन में डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका फंक्शन है तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप क्या है, ये तो कॉर्ड हो गई, इस पॉइंट पे जो स्लोप है यही आपका एफ डैश एक्स है, ठीक है। बट डबल डेरिवेटिव सॉरी डबल वेरिएबल के फंक्शन में अगर आप ज्योमेट्रिकली समझना चाहो तो ये सपोज आपकी कोई सरफेस है, ये इस तरीके से, ये ऐसी कोई सरफेस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, ये पॉइंट मैंने पिक किया, सपोज ये a कॉमा बी है इन द डोमेन, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमें एक यूनिक टेंजेंट प्लेन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट प्लेन तभी मिलेगा जब वो जो मैंने आपको लिमिट पूरा लिखवाई है, लिमिट डेल्टा रो टेंडिंग टू 0 डेल जेड माइनस डी रो अपॉन डेल्टा रो, अगर ये 0 है। अगर यूनिक टेंजेंट नहीं मिलता है या यूनिक टेंजेंट प्लेन या टेंजेंट नहीं मिलता है तो ये आपका पॉइंट नहीं होगा। बेसिकली जो सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा था सर, जैसे कि वो जब डी जेड कैलकुलेट कर रहे थे ना हम, तो उसमें सर आपने मतलब कि ये लिखाया था क्या कि जैसे हम लिखते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट अपॉन डेल्टा एक्स। हाँ ठीक है। तो सर इसमें जो स्लोप आ रही है सर वो किसकी होगी, मतलब एफ डैश ये जो हम एफ डैश सी। इंक्रीमेंट थ्योरम जब प्रूफ कर रहे थे उस हाँ समय की हाँ बात, हाँ यस सर उसमें स्लोप कोई नहीं आ रहा है। स्लोप कहाँ पे आ रहा है? तो जैसे आपने बोला ना कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स नॉट। वो तो हमने, आप अगर प्रूफ को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो दैट वाज डन ऑन सम इंटरवल, वो सिंगल वेरिएबल के ही फंक्शन है। स्लोप इसी आ को रहे हम हैं, वो या इसी तो को जो g ऑफ y फंक्शन बना था या h ऑफ x फंक्शन बना था उसके स्लोप्स हैं। तो सर उसी को हम एक्सटेंड कर डबल वेरिएबल में, तो हम लिखा था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। नहीं, उसको नहीं एक्सटेंड किया, यू डिडंट गेट द प्रूफ करेक्टली। ना मतलब कि फर्स्ट extend वेरिएबल में सेकंड वेरिएबल में हमने वैसे मतलब क्या कहते हैं एनालॉगी ली ना हमने उसको। नहीं, देयर इज नो एनालॉजी। मतलब ऐसा नहीं कहा कि ऐसे ही सिंगल डेरिवेटिव का है तो इसी तरीके से सिंगल वेरिएबल का है जैसे डबल वेरिएबल का हो जाएगा। इट्स नथिंग लाइक दैट। लेट मी ओपन दैट थ्योरम। ये था ना, ये थ्योरम था। तो यहाँ पे कोई एनालॉगी नहीं है। हमने सिंपल क्या किया है कि एक ये दो पॉइंट लिए थे ए और सी, और हमने क्या किया है कि इस दोनों पॉइंट्स पे फंक्शंस की डिफरेंस की लिमिटिंग वैल्यू निकाली है। मींस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए का क्या वैल्यू होगा लिमिटिंग पोजीशन में, यही निकाला है। इसी को तो डीजेड बोला है। अगर आप सिंगल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट याद करो तो आपका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीएफ बाई डीएक्स। अगर यहां पे मैं लिमिट लगा दूं एच टेंडिंग टू 0 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है। बट अगर आप केयरफुली देखो इस थ्योरम में हमने प्रूफ क्या किया, हमने एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए की लिमिटिंग वैल्यू निकाली है और उसी को हमने क्या बोला है, डीजेड। तो मतलब कि ये हमारे पास ये पूरी चीजें हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं और ये हटा दूं, यही चीज निकाली है डबल डेरिवेटिव में, ठीक है। तो अगर आप एनालॉगी ढूंढ रहे हो तो यहां पे कुछ एनालॉगी आप देख सकते हो, अदरवाइज देयर इज नो एनालॉगी। डिड यू और सर जैसे ये लेफ्ट में आपने लिखा हुआ है कि ये जो हमने ये डेल्टा Z1 के लिए जो कैलकुलेशन करी है, हाँ उसमें सर जो ये एफ एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई नॉट माइनस एफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है हाँ अपॉन डेल्टा एक्स जो लिखा था सर, उससे क्या मिल रहा है हमें, वो क्या है, क्या चीज वो भी क्या एक्चुअली नहीं, आप समझे नहीं। हम क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ, केयरफुली समझो तब सुनो तब समझोगे। हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि एफ ऑफ सी और एफ ऑफ ए के डिफरेंस की लिमिटिंग वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है।
उसके लिए हमने अप्रोच क्या किया कि जो पाथ है वो ब्रेक कर दिया, कि पहले हम ए से सी का डिफरेंस निकालेंगे और सॉरी ए से बी का डिफरेंस निकालेंगे, फिर सी से बी का डिफरेंस निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। और जब आप लिमिट लोगे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई टेंडिंग टू 0, तो आपका पॉइंट सी ए पे ही अप्रोच करेगा। ठीक है, तो जो ये डेल्टा Z1 है वो क्या है, दैट इज द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, और डेल्टा Z2 क्या है, फंक्शनल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट सी एंड पॉइंट बी। तो सर हम और ऐसा नहीं इन्हीं कह दोनों को कि कैसे कह जैसे सकते हैं? कि ए और बी जिस प्लेन में होंगे उस हाँ, प्लेन का स्लोप दे रहा है एफ डैश सी, कैपिटल एफ डैश सी जो लेफ्ट में लिखा है। कैपिटल एफ डैश सी, हाँ ठीक है। वो प्लेन हाँ नहीं है बेटा, ये एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, क्योंकि जब हम लाइन ए बी पे वर्क कर रहे हैं तो देर इज नो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कांस्टेंट है। तो ये एक आपको टेंजेंट देगा, टेंजेंट प्लेन नहीं देगा। जो एफ डैश सी है, इट्स अ टेंजेंट टू विच द कनेक्ट्स ए एंड बी, मतलब एक जो भी वैसी कर्व, जो भी कर्व ए और बी को कनेक्ट कर रहा है, ये उसका स्लोप है। हाँ हाँ। तो सर फिर जैसे कि वो जो तानिश ने पूछा था कि मॉड एक्स और मॉड वाई वाला प्लस मॉड वाई वाला जो है कर्व हमारा, हाँ हाँ उसमें भी हाँ। सर हम अगर हम पॉजिटिव एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो हमें अलग प्लेन मिल रहा है, तो मतलब कि उसकी जो वहां से स्लोप होगी वो अलग आएगी। अगर हम वहां से अगर पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेंगे तो अलग प्लेन मतलब अलग हमें आएगा एफ डैश सी की वैल्यू। नहीं, उसमें उसमें आप अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई 0 0 पे जो फंक्शन है, एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज आप निकालो एट 0 0। अगर ये एग्जिस्ट करते हैं तो आप जो ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा जेड माइनस डी जेड अपॉन डेल्टा रो, इसमें पुट करो। अगर उसका यूनिक टेंजेंट प्लेन वहां पे एग्जिस्ट कर रहा होगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का, तो वो डिफरेंशिएबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट व्हाट आई रिप्लाइड टू हिम एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे 0 0 पे उस फंक्शन के, तो फिर डिफरेंशिएबल होने का तो मतलब ही नहीं है। मतलब फिर इट वोंट बी डिफरेंशिएबल लाइक दिस। जैसे हाँ अगर सर सर इसको वो हम तो आ गया था कि एफ एक्स पे मतलब 0 0 पे अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, अगर अलग अलग साइड से अप्रोच करेंगे तो फिर तो इसका मतलब ये है कि एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। It हाँ। means कि और इसको हम इससे डेल्टा FX जेड माइनस डी जेड से प्रूव करना चाह रहे थे ना, तो उसमें हमारी बहस हुई नहीं, थी तो। डेल्टा जेड में डीजेड लगेगा ही नहीं ना उसमें, क्योंकि डेल्टा जेड माइनस डीजेड में तो आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। वो जब आपके पास है ही नहीं तो इसको यूज करने का मतलब ही नहीं बनता। हाँ सर वही बता रहा था मैं उसको, पर वो शायद मान नहीं रहा था। नहीं, सिंपल सी बात है, जब आपका पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी वहीं खत्म हो गई, बात डिफरेंशिएबिलिटी की, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ठीक, सर। ओके। हर्षिता, Yes, sir. Sir, I have a doubt in the last part. एक मिनट, ये बड़ा टाइम लगता है इस पेज को चेंज करने में। मैं वहां पे जा रहा हूँ, क्या डाउट है आप बताइए, तब तक मैं सुन रहा हूँ। Sir, we got plus minus 2 and plus minus 1 in the end, x and y values. ओके, So, sir, those are the points which are possible for maxima and minima. एग्जैक्टली। Okay, sir. But sir, like we are getting the same value for 2 points. ठीक है, So, sir, then how do we do it? नहीं उसमें जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अगर सेम वैल्यूज आ रही है इसका मतलब कि 2 पॉइंट पे उसका जो मैक्सिमा या मिनिमा है वो एक ही है। ठीक है, मतलब कि Okay, आपका sir. जो फंक्शन है कुछ इस तरीके का है, ये जैसे साइन फंक्शन होता है, ये इस तरीके का है। एक मिनट दीजिए, ऐसे गए और ऐसे गए। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू एक है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, बट दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे हैं। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो मैक्सिमा या मिनिमा है वो मल्टीपल है, एक जगह पे नहीं है। एक ही मैक्सिमा मिनिमम की वैल्यू है बट वो कई है, यही केस होगा। So, sir, there can be 2 absolute maximas for the same function. एग्जैक्टली, इट इज क्वाइट Oh, पॉसिबल। okay, thank you, sir. यस जसकीरत।
यस सर, गुड मॉर्निंग। बताइए। सर वो जो आपने कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि एक यूनिक टेंजेंट प्लेन एग्जिस्ट करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे जो आपने वो एक बार बताया था डायरेक्शनल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट, हाँ हाँ। तो वो सर सारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव बराबर होंगे? यूनिक टेंजेंट प्लेन, हाँ ये दैट्स वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अगर उस पॉइंट से आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो मतलब सेम ही होगा। दैट इज द मीनिंग। नहीं नहीं, तो वो प्लेन तो बनेगा ही नहीं ना, अगर थोड़ा सा भी बदल गया कोई। हाँ थोड़ा सा भी बदल गया तो नहीं बनेगा। जैसे कि आप किसी पीक पे खड़े हो, किसी हिल की पीक पे खड़े हो, तो उस पे आपके ढेर सारे टेंजेंट प्लेन बन सकते हैं विद हाँ डिफरेंट जी डिफरेंट सर। ओरिएंटेशन। तो वहां पे क्या है कि हाँ जो जी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। बट अगर आपका सारे डायरेक्शन में डेरिवेटिव्स की वैल्यू एक ही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है। हाँ जी सर। और एक वो जो क्वेश्चन कराया था आपने, जहाँ हम्म पे वो सारे केस बनाए थे हमने, कॉर्नर पॉइंट ट्रायंगुलर वाला क्वेश्चन था जो। हम्म। हाँ, तो उसमें सर मेरा डाउट था कि अगर ये मैंने अभी चेक नहीं किया कि अगर ये जो हमने निकाला सबसे पहले पॉइंट 1,2, तो अगर तो ये मैक्सिमम है, मैंने चेक नहीं किया है सर अभी, अगर ये हम्म। मैक्सिमम है तो मतलब ये सिर्फ हमने यही कैसे अगर चलो वो तो ठीक है, जरूरी था कि कॉर्नर पे चेक कर लिया x इज इक्वल टू 0, पर हमें ये कैसे पता कि मतलब सर उसके अंदर भी तो कोई और मिनिमा हो सकता है? मिनिमा मतलब इन द सेंस कि मिनिमम वैल्यू और ज्यादा हो सकती है ना, उससे उससे ज्यादा, नहीं बाहर से नहीं, ज्यादा। नहीं होगी नहीं होगी। अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है तो जैसे ही हमने पार्शियल डेरिवेटिव वाले, ईशा आई एम टेकिंग योर क्वेरी आफ्टर दिस, जैसे ही आप फर्स्ट डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करोगे, अगर उसके इंटीरियर में कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसपे कि और छोटी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का जो सोल्यूशन है वो दे देगा। अगर वो नहीं नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कि उसके अंदर नहीं होगा उससे छोटा या बड़ा। नहीं नहीं सर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर 7 मैक्स, अगर जो 7 वैल्यू आई है हमारी ठीक है। वो मैक्सिमम है, तो वो वैल्यू तो वो नहीं देगा, क्योंकि वो एक ही मैक्सिमम बताएगा कि सारे फंक्शन का, क्योंकि वो ये तो बता नहीं रहा कि आपने कौन सा रीजन, हमने कौन सा रीजन कंसिडर किया है, वो तो पूरे के हिसाब से बताएगा, है ना हम्म। सर? तो वो हाँ पूरे वो के हिसाब से पूरे के बताएगा, हिसाब तो से। एग्जैक्टली। हाँ, तो फिर वो तो वो ट्रायंगल में तो हमें चेक करना है ना, तो ट्रायंगल में अगर चेक करना है तो वो वैल्यू कम हो रही होंगी उसके आसपास सारी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आया कोई प्रूफ उसका, या कोई मुझे ज्योमेट्रिकली कि वो वो जो अंदर उसका ट्रायंगल का रीजन होगा उसमें उससे कम वैल्यू क्यों नहीं होगी, वो क्या कहते हैं, कॉर्नर से या फिर कॉर्नर टेंजेंट से। वो मैंने एक दो पिक्चर बनाया था इस सरफेस में, तो मेरे लिए बनाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। बट मैं आपको सिंगल वेरिएबल के केस से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है जिसको कि आपको एक इंटरवल पे उसका मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो 2D में रीजन या सिंगल वेरिएबल है तो इट्स एन इक्विवेलेंट टू एन इंटरवल। ठीक है। सपोज ये इंटरवल मैंने लिया। ठीक है। और इस इंटरवल के अंदर जो हमारा फंक्शन का ग्राफ है कुछ इस तरीके का है। ये जो है ऐसे जाता है, ऐसे जाता है और ऐसे जाता है। ठीक है। एंड इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक है। और ये भी ऐसे ऊपर की तरफ चला जाता है। तो बट हमें जो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है वो सिर्फ इसी इंटरवल में फाइंड आउट करना है, जो जो मैंने ब्रैकेट बना रखे हैं। ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। जैसे ये ब्रैकेट बना रखा है ना, सिर्फ इसी पे ही मैक्सिमम मिनिमम हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये आप इसको एक 3D में इमेजिन करना चाहो तो इसको थोड़ा सा
अपनी तरफ जो ये एक्स वाई प्लेन है उसको अपनी तरफ खींच लो, तो ये पूरा एक सरफेस सा बन जाएगा, और जो इंटरवल है पूरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। अब जब आप पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करोगे या डेरिवेटिव सिंपली जीरो करोगे इन अ सिंगल वेरिएबल केस, तो वो कौन से दो पॉइंट देगा? वो एक तो ये वाला आपको निकाल के देगा, ठीक है, और एक ये वाला निकाल के देगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी मैक्सिमम मिनिमा हैं, देयर इज नो इशू, दे आर नॉट मैक्सिमम मिनिमा बट दे आर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। बट आपका जो ये डेरिवेटिव है वो ये वाला पॉइंट कभी नहीं देगा, ये वाला पॉइंट नहीं बताएगा, और ये वाला पॉइंट भी नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो है ही नहीं। बट अगर मैं अब फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम की बात करूं और सबको लिस्ट करूं, सपोज ये पॉइंट आपकी ए वैल्यू है, ये बी वैल्यू है, ये सी वैल्यू है, ये डी वैल्यू है, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? डी, अपना डी, हाँ जी डी है। तो इसका मिनिमम क्या हो गया? जो एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया इस रीजन पे, वो क्या हो गया? डी हो गया। और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो कितना हुआ? वो सी हो गया। बट ये दोनों ही इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहे हैं। इंटरवल में जो आपके मैक्सिमम मिनिमा लाई कर रहे हैं, दे आर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि अगर डेरिवेटिव जीरो करने पे वो अंदर में नहीं दे रहा है तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई और एक पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा जिसपे कि आपको वैल्यूज जो है सी से बड़ी या डी से छोटी मिल जाएंगी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है देन हम कुछ नहीं कह सकते हैं, देन दिस एंटायर मेथड इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ईशा, Good morning, sir. Right. So slide 81, I didn't understand the geometrical meaning which you explained for that Lagrange's. 81 geometrical meaning of what? Sir, geometrical this meaning. particular thing, this 3D diagram, surface and below it we have. नहीं, हम ये कह रहे थे कि आपको सपोज fxy इक्वल्स टू xy गिवन है, ठीक है, इसका आपको मैक्सिमा या मिनिमा इवैल्यूएट करना है। Yes, sir. कहाँ पे इवैल्यूएट करना है? You need to evaluate on x square by 8 plus y square by 1 equals to 1, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि सपोज हम fxy की सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो वो उसकी सरफेस तो एक डिफरेंट टाइप की होगी, बट मैं इन जनरल कोई भी सरफेस बना सकता हूँ बिकॉज fxy की जगह पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो सपोज ये हमारी सरफेस है, ये इस तरीके की सरफेस है, ये ऐसी आई, ये ऐसे, सपोज ये fxy है, ठीक है, fx, y, और ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका मैक्सिमम मिनिमा इंटायर R2 पे निकालो, ये जो प्लेन है वो क्या है? XY प्लेन है, जिसी को हम R2 बोलते हैं, ठीक है। बट अभी हमने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि हमें इसका मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, बट कहां पे मैक्सिमम मिनिमा चाहिए? सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन पे। तो ये रीजन क्या है? अगर मान लो ये इलिप्स है जो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। Yes, sir. This is not this ellipse, just for understanding I am drawing, okay? So अब हमें मैक्सिमम मिनिमा एग्जैक्टली में चाहिए क्या? अब इस इलिप्स को आप अगर इसके ऊपर स्टैक ऑफ इलिप्स रखते चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा? कैन यू टेल मी? अगर एक इलिप्स के ऊपर एक और इलिप्स रखा, वही इलिप्टिकल सिलेंडर मिल जाएगा। Yes. अब इलिप्टिकल सिलेंडर जो fxy सरफेस है उसको कट करते हुए आगे निकल जाएगा। इज दैट ओके? Yes, sir. अब जो इलिप्टिकल सिलेंडर fxy को कट करेगा, मींस इलिप्टिकल सिलेंडर और जो fxy का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक कर्व बनेगा, ठीक है। Yes, sir. उस कर्व का एक्चुअली हमें मैक्सिमम मिनिमा चाहिए। उसको हम किस तरीके से कहते हैं कि fxy का हमें मैक्सिमम मिनिमा चाहिए ओवर दिस डोमेन और सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। अब बताइए क्या नहीं समझ में आया? So why did we stack those ellipses?
नहीं, स्टैक करने की बात Stacking नहीं है। क्योंकि स्टैकिंग तो मैंने आपकी समझ के लिए बोला। हमें जो डोमेन पॉइंट है, आप डोमेन पॉइंट को सिर्फ उतने ही डोमेन पॉइंट ऑब्जर्व करो जो इलिप्स पे हैं, बाकी हमारा डोमेन है ही नहीं। तो इसका सपोज अब सिर्फ डोमेन पॉइंट पे अगर सरफेस का आर्किटेक्चर हम देखते हैं तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ये इस तरीके का। yes sir. ठीक है, इसीलिए मैंने स्टैक करने के लिए बोला था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो पोर्शन है इस सरफेस का जो सिर्फ इस इलिप्स के ऊपर ही है, तो ये आपको कैसे मिलेगा, जो मैंने स्टैक कर का एग्जांपल बताया वैसे ही तो मिलेगा। तो ये जो हमारा कर्व है इसका मैक्सिमम मिनिमम हमको चाहिए। तो इसी को इन जनरल हाउ वी से कि एफ एक्स वाई का हमको मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है, So to सिर्फ all those points which are on this on the perimeter of ellipse, only those points are in the domain. यस यस एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट। Yes sir. Thank you sir. ये जो है, हो सकता है आपको ये जो कंडीशंस हैं एक से ज्यादा कंडीशन मिल जाए, तो बेसिकली आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैक्स और मिन ऑफ एफ एक्स वाई विच इज एक्स वाई सब्जेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल्स टू 1। तो मतलब कि जो डोमेन है वो इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली दोज पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन द पेरीमीटर ऑफ द इलिप्स। ठीक है, So but वो line वाले in that particular example, the very first example, so there were few points which lied which inside of the triangle, in the interior of the triangle. नहीं तो वहां पे यहां पे अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू, तो ये उस प्रॉब्लम के इक्विवेलेंट हो गया। वहां पे हमने ये नहीं कहा था कि ट्रायंगल पे चाहिए हमें, वी स्टेटेड ऑन अ ट्रायंगुलर रीजन। ओके, यहां पे अगर मैं पूरी इलिप्टिक डिस्क कर दूं तब वो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम इक्विवेलेंट है, बट यहां पे हमें इंटरनल पार्ट पे हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, Yes sir, I got it. Thank you sir. ये संतोष। Hello, sir. Yes. Sir, in the Lagrange method, we can say f Yes. of x is equal to lambda of g of x, sir. F of x equals to Lambda of g of x. g of x, g of xy. What you want to ask? I mean geometrical applications, sir. How it look like? Geometrical. They are parallel, sir. G of x and f of x. Geometrical application is very beautiful. I just didn't want to discuss. Sir, I think like they are parallel, sir. Yes, they are parallel. Basically, what happens? I didn't discuss this because I didn't tell you what is the geometrical meaning of gradient of a function. Gradient of the function is nothing but the it's a vector which is normal to the surface. Okay, it's a vector which is normal to the surface. So And we your evaluate f of x, f of y, f of z, sir. f of X, f of y, f of z in gradient, sir. in gradient we have all fx, fy, fz. If it is a function of only x and y, so we'll limit to only x and y. Okay, so listen first what I'm saying. First listen, then your doubt will be clear. The gradient of a function means it is a normal to the surface. अगर ये suppose कोई surface है आपके पास, you have a surface whose equation is fxy, z equals to fxy, and at this point if I am evaluating its gradient, so it gives the direction of the normal. Okay, so what we are claiming? We are claiming that the maxima or minima of fxy will lie at only those points where the direction of the function and the direction, normal direction of the condition, both will be in the same direction, same or opposite direction. Okay, again I'm repeating,
by equating this equation, what we are interpreting that the maxima or minima of fxy or fxyz will lie on only those points where the direction of normal to the surface F and the direction of normal to the surface G both will lie in a same or opposite direction. Okay, sir. Okay. So when we'll do its more geometrical meaning, then I'll show you how if they are equal, then maxima and minima are existing. Okay, but your question was good. So I mean at x naught comma y naught, if we evaluate Yes. f of x is equal to lambda g of x, Yeah. then they are No. parallel to each other. Their normal directions are parallel to each other. Sir, Not fxy and gx. But we compare both of them, sir. I mean f of x, I into f of x is equal to I into g of x, lambda into I g of x. Sir. Their gradients we are comparing, not function, not we are comparing. We are comparing their gradients. And gradient means normal. So gradient means I into f of x plus I into g of x, f of y. Gradient means this. I Gradient times del f by del x plus j times del f by del y plus k times del f by del z. If it is a function of 3 way. Del f by del x is equal to f of x. Sir. F of x nahi, it is fx. Del f by del x is not f of x. fx. fx. So as fx. Yeah. Yes, yes. That means f of x is equal to lambda of gx. Fx is equal to lambda of gx. Sir. Fx, yes, fx equals to lambda gx. Yes, this They is are parallel fine. to This each is other. absolutely. They are parallel to each other at a point x naught comma g naught. At point x naught comma g naught, the partial derivatives, the partial derivatives are Equal. you can say parallel, or better to call them as a scalar multiple, not parallel. As a scalar multiple, at where x naught comma y naught lie on the g of x comma y equal to 0, sir. Yes, yes, this is absolutely right. Is my assumption right, sir? Sorry? I assume like that, sir. Is my assumption right or wrong, sir? Yes, yes, your assumption is right. That fx equals to lambda gx, fy equals to lambda gy, and fz equals to lambda gz. Okay. Sir. So it's like the partial derivatives of f and partial derivatives of g, they are scalar multiple. Okay. At point x comma y naught. At point x naught comma y naught. Absolutely. Thank you, sir. Okay. Okay. Then we do not have further any queries. Okay. So Monday को हम फिर मिलेंगे and then we will proceed further.